السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، بعد میں آپ کو کال کر رہا تھا، آپ کال نہیں اٹھا رہے تھے۔ اس دن آپ سے بات ہوئی تھی نا، پھر بعد میں آپ کو کال کر رہا تھا، کال نہیں اٹھا رہے تھے آپ۔ مصروف ہوں گا۔ پھر آپ نے دوبارہ مس کال بھی نہیں دی، ہو سکتا میں کال کر لیتا۔ بہت کالیں آ جاتی ہیں، ابھی کیا یاد رہتا ہے کہ اپنے کام تھوڑے ہوتے ہیں، دوبارہ کر لیتے تھوڑی دیر بعد۔ تقریباً 4 مرتبہ میں نے ٹرائی کی تھی۔ اچھا، کیا بات ہے؟ بات یہ کر رہا تھا کہ آپ کہتے تھے نا کہ تعویل کا دروازہ ان بریلویوں نے خود بند کیا ہے۔ کیا کہتے تھے؟ آپ کہہ رہے تھے نا کہ بریلویوں نے خود تعویل کا دروازہ بند کیا ہے۔ تو جب میں فون پہ تم سے بات کر رہا تھا تو تم نے اس وقت فون کیوں کاٹا؟ اس وقت بیلنس ختم ہو گیا تھا، اس لیے میں نے دوبارہ بیلنس پھر ڈلوایا تو پھر آپ کو کال کر رہا تھا۔ ہاں، تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، تمہاری وجہ سے تمہارا کوئی عذر ہوتا ہے تو سامنے والوں کا بھی کوئی عذر ہی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اٹھاتے ہیں۔ اب دیکھیں 31 منٹ میں میرا خیال ہے 25 سے 31 منٹ گفتگو ہوئی تو ضرور بات ہے بیلنس ختم ہو جاتا تھا۔ اچھا، تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ کہتے تھے نا کہ بریلویوں نے تعویل کا دروازہ بند کیا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ڈاکٹر خالد صاحب کہتے ہیں کہ جنہوں نے بے خبری میں کہا ہے تو ان پر بھی توبہ فرض ہے۔ تعویل کا تو خالد صاحب نے دروازہ بند کر دیا ہے۔ اچھا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں نے یعنی کہ دیوبند کے علماء نے یعنی کہ مرزا قادیانیوں کو احمدی لکھا ہے، تو ان کی توبہ اور رجوع جو ہے وہ ثابت کرے۔ یہ بتاؤ پہلے آپ اپنا رجحان بتاؤ کہ آپ نے پچھلی مرتبہ ویڈیو پہ فون پہ کہا کہ آپ نہ دیوبندی ہیں نہ بریلوی ہیں، ایسا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ آپ نے پچھلی مرتبہ فون پہ کہا کہ آپ دیوبندی بھی نہیں ہیں بریلوی بھی نہیں ہیں۔ نہیں، یہ جملہ تو بالکل نہیں کہا میں نے۔ قسم کے دیوبندی ہیں نہ متعصب قسم کے بریلوی ہیں، یہ جملہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہ میں دیوبندی ہوں نہ بریلوی ہوں۔ میں نے یہ کہا کہ میں تحقیق کے مراحل میں ہوں، اور نہ میں متعصب دیوبندی ہوں نہ میں متعصب بریلوی ہوں، یہ کہا تھا؟ بالکل کہا تھا۔ تو آپ کیا ہیں؟ جی، آپ کیا ہیں؟ یہ جو لفظ ہے نا بریلوی دیوبندی، اس کو ہٹا دیں آپ۔ نہیں، آپ ہیں کیا؟ وہ ہٹ گیا، آپ کیا ہیں؟ میں اہل سنت ہی ہوں، مسلمان ہوں۔ اچھا، یہ متعصب بریلوی کون ہوتے ہیں؟ کون سے؟ جس کو آپ نے کہا کہ میں متعصب بریلوی نہیں ہوں، یہ بریلویوں میں متعصب کون ہوتے ہیں؟ کیا مطلب کہ متشدد کون ہوتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ آپ نہ متعصب بریلوی ہیں نہ متعصب دیوبندی ہیں۔ جی، جو آپ نے کہا کہ آپ متعصب بریلوی نہیں ہیں، یہ لفظ متعصب بریلوی کا مفہوم کیا ہے؟ معنی کیا ہے اس کا؟ ہم کس کو متعصب سمجھیں کس کو نہ سمجھیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اچھا، اس بات کو یہاں روک دیتے ہیں۔ جو میں نے پہلے پوچھا ہے، پہلے آپ اس کا ارشاد فرمائیں۔ وہ تو پہلے آپ نے تو یہ کہا تھا کہ آپ نہ متاثر، یہ تو آپ ابھی بات کر رہے ہو نا، جو فون پہ ابھی بات کر رہے ہو، یہ تو ابھی کی بات ہے، یہ پرانی بات ہے جو میں اٹھا رہا ہوں۔ نہیں، پرانی بات اسی میں آپ پوچھ لیتے نا، آپ تو اسی میں پوچھ لیتے، آپ نے اس وقت نہیں پوچھا، آپ کیوں پوچھ رہے؟ فون کر دیا تھا؟ نہیں محترم، فون کاٹا نہیں تھا، کٹ گیا تھا بیلنس ختم ہونے کی وجہ سے۔ چلو کٹ گیا ہوگا فون، لیکن وہ تو ابھی آپ اس کی بات تو ابھی کر رہے ہو نا، ابھی بات ہو رہی ہے اس کے بعد تو بات نہیں، میں نے بعد میں کال کی تھی، وضاحت لے سکتا ہوں؟ نہیں، بعد میں نے کال کی تھی 4 مرتبہ، آپ نے پھر جو ہے جوابی مس کال نہیں دی، نہ کوئی میسج کیا، ورنہ میں دوبارہ بھی کر لیتا۔ چلو ابھی بات ہوگی، آپ نے میں نے آپ کے بارے میں یہ ذہن رکھا کہ آپ نے اس وقت نہیں پوچھا کہ اس کے مفہوم بتائیں۔ اب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ خالد صاحب نے تعویل کا دروازہ بند کیا ہے۔ وہ تب ہوتا وہ میں تب تم سے سوال کرتا جب بات چلتی رہتی، وہ تو بات کٹ گئی۔ اب تم نے کہا کہ میں نے کال نہیں کاٹی، وہ خود کٹ گئی ہے، تو میں نے مان لی تمہاری بات کی، تم نے چلو خود کٹ گئی ہوگی، تو ابھی بات ہو رہی ہے نا اس کے بعد سے۔ اچھا، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو میرا جواب تھا کہ نہ میں متشدد قسم کا دیوبندی نہ میں متشدد قسم کا بریلوی، وہ سوال پہلے تھا، اور آپ کی میری گفتگو تو بہت زیادہ دیر تک ہوتی رہی، آپ نے اس کا مجھ سے کوئی مفہوم تک بھی نہیں پہنچا، تو آپ وہی سوال اٹھا رہے ہیں۔ میں اس کا جواب دینے آخر میں یہ بات کی تھی۔ اچھا، آخر میں تقریباً میرا خیال ہے 5-6 منٹ بعد میں گفتگو چلتی رہی، آپ نے نہیں پوچھا تھا، تو اب میرا سوال یہ ہے، میں اس کا جواب دینے کے پابند ہوں، میری بات سنیں مفتی صاحب۔ پوچھ رہا ہوں نا،
उस वक्त नहीं पूछा तो अभी पूछ रहा हूँ ना यार, पूछने में क्या हर्ज है? मुफ्ती साहब मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मैं नहीं ये कहता कि मैं जवाब नहीं दूंगा। मेरी अर्ज ये है कि आप कह रहे थे कि तावील बरेलवी ने खुद बंद किया है, तो मैं कह रहा था डॉक्टर खालिद साहब ने खुद तावील का दरवाजा बंद किया है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हारी ये बात है डॉक्टर साहब ने तावील की है, तावील का दरवाजा बंद किया, तुम्हारी ये बात अभी की है ना, और ये तुम्हारी बात कि तुम मुतशद्दिद बरेलवी नहीं हो, ये तुम्हारी बात पुरानी है। मुझे उसकी वजाहत करो ताकि मैं आगे तुम्हारे सामने गुफ्तगू करते हुए उन दलाइल को सामने रखूं ना। अब मैं आपको मैं आपको देवबंदी दलाइल दूंगा, आप कहोगे मैं मुतशद्दिद देवबंदी नहीं हूं। फिर मुफ्ती साहब अब फिर फोन कट जाएगा, बैलेंस खत्म होने की वजह से फिर फोन कट जाएगा, फिर आप कहेंगे कि जो है फोन कट जाएगा। सुनो, फोन कट जाएगा तो उससे पहले आप जल्दी मुझे पहले समझा दो, फिर मैं आपको बता दूंगा कि क्या मसला है। आपकी सवाल का जवाब मैं दूंगा आपको, तो मुझे भी तो समझाओ ना, आखिर मेरा भी मैं आपको दलाइल किस तौर पे दूं? मुफ्ती साहब मेरी बात सुने, अब कॉल पहले मैंने की है, आप कॉल करते मुझसे पूछते कि ये क्या मतलब है मुतशद्दिद किस्म का, ना देवबंदी हो ना बरेलवी, इसका जो है जरा मफहूम बताओ, तो आप कॉल करते मैं जवाब देता। अब मैं कॉल कर रहा हूँ तो आपके ऊपर जरूरी बनता है कि आप जवाब इरशाद फरमाएं। मुझे बात सुनो, कॉल आपने की है ना जी, तो मुझे सवाल का आपसे हक है, मैं साइल हूँगा, फिर सवाल का हक मुझे होगा, आपको नहीं होगा। नहीं, कॉल मैं कर रहा हूँ, भले आप कर रहे हो। चलो ठीक है, जैसे मैंने कॉल किया है, जैसे मैंने कॉल किया है, मैं आपको हाँ जैसे मैंने कॉल किया, आप उसी वक्त ये पहले सवाल उठाते कि पहले वो वजाहत करो। मुझे दिन में दर्जनों कॉलें आती हैं, मैं लोगों को फोन करके एक वजाहत नहीं पूछूंगा। जब मुझसे कोई फोन करके बोलेगा वो तो मुझे इस बात की दलील दो, तो मैं पूछूंगा। वो तो हर एक को कॉलें आती हैं। तावील के बारे में आप मुझे कहते हो कि मुझे तावील, तो कालें आपको तो मैंने नहीं की ना, आपने की हुई है ना, तो मुझे मेरी तसल्ली तो करवाओ। अच्छा चलो, आप मुझे कह रहे हो, आप मुझे कह रहे हो, सुनो, आप मुझे कह रहे हो कि अल्लामा साहब ने ये लिखा है, अल्लामा साहब ने, तो मैंने जवाब में आपको कोई दलील देनी है ना। यूं कर लेते हैं कि अभी सबर मेरी अर्ज सुनो, अब मैंने कॉल की है, आपको मैं टाइम दे देता हूँ, जोहर का दे देता हूँ या असर का दे देता हूँ या मगरिब का, आप उस वक्त मुझे कॉल करें, मुझ पर सवाल करेंगे, मैं जवाब दूंगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है, बात सुनो, मुझे कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर आप उससे इल्म हासिल करने के लिए सवाल कर रहे हैं तो मैं भी आपसे कुछ चीजों की तसल्ली करवाऊंगा। जब मैंने आपको कॉल की हो ना, फिर आप अपनी तसल्ली करवाएं। मैंने आपको कॉल नहीं की। लेकिन देखिए मुफ्ती साहब, आपने इतनी बड़ी बात की है कि बरेलवी ने खुद तावील का दरवाजा बंद किया, तो मैं कहता हूं कि डॉक्टर खालिद साहब ने खुद तावील का दरवाजा बंद किया। आप इस बात का क्यों नहीं जवाब देते? इस बात का जवाब दूं आपको? जी, इस बात का जवाब दूं आपको? जी दे। मैं आपको जवाब दूंगा। जाहिर है कि उसके लिए मुझे ढूंढना होगा कोई देवबंदी किताब, कोई बरेलवी किताब से आपको जवाब देना होगा। तो मैं आपको कैसे जवाब दूं जब आप ना मुतशद्दिद बरेलवी है ना मुतशद्दिद देवबंदी है? तो मैं आपको कौन सी दलील दूं? क्यों? आप अपना कोई तायुन तो करो कि आप क्या हैं कि मैं आपको उसके मुताबिक दलील दूं। मैं अहले सुन्नत कह रहा हूं अपने आप को, आपको क्यों नहीं समझ आ रही? चलो, आप अहले सुन्नत है ना जी। आप अब ये बताओ, तुमने कहा मुतशद्दिद बरेलवी नहीं हूँ जी, तो इसका क्या मतलब है? इसका जवाब खुदारा मैं इस बात का जवाब देने के लिए पाबंद हूँ और रहूंगा। मैं पूछ रहा हूँ कि तावील का दरवाजा तो डॉक्टर खालिद साहब ने बंद किया, आप इसका पहले तो जवाब इरशाद फरमाएं। इसी का जवाब दे रहा हूँ मैं, इसी का जवाब। जी फरमाएं। अच्छा मोहतरम, ये अर्ज करते, आपके पास जैज वाला नंबर है? मेरे पास यही नंबर है जिस पर आप कॉल कर रहे हैं। ये कौन से नेटवर्क पर है? ये जोंग पर है। अच्छा, जोंग पर। अगर मैं जोंग पर कॉल करूं तो आप उठा लेंगे? यही नंबर जोंग पर है। नहीं, मैं अगर अपने जोंग वाले नंबर से कॉल करूं तो इजाजत हो तो? आप बात करो, इसी नंबर से कर लो, जो बात करनी है कर लो। अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे थे, चलो मैं आपके इसरार पर जवाब देता हूं कि आप कहना चाहते हैं कि ये मुतशद्दिद किस्म के बरेलवी कौन से होते हैं। आप यही मुझसे पूछ रहे हैं ना? जितनी भी तहरुल कादरी की पार्टी है ना, वो जो है ना मुतशद्दिद, मेरी मुराद वो है कि उस किस्म का मैं बरेलवी नहीं हूँ, और जो अकायद यानी कि फतावा रिजविया शरीफ के अंदर मौजूद है अहले सुन्नत के, उसी का मैं कारेबांद हूँ। और बाकी जो आप मुझसे पूछ रहे हैं मैंने जवाब दे दिया है। अब आप जरा डॉक्टर साहब खालिद साहब की बात पर आए। आपने कोई इल्म किया हुआ है, पढ़ा हुआ है कुछ? जी, कोई किताबें पढ़ी?
अब सवाल क्या था मोहतरम, जो पूछे वो बता दिए, इसको आप आगे रखिए, मैं इसका जवाब दूंगा। मैं जवाब आपको आपकी हैसियत के मुताबिक देना चाह रहा हूँ। आपने किताबें पढ़ी कि नहीं? अल्लाहु अकबर। आप तो फिर उसी वक्त दो सवाल इकट्ठे करते ना कि आपने कुछ पढ़ा है तो आपने पहले सवाल वो किया, अब मैंने जवाब दे दिया, अब फिर आप उसकी तरफ आते भी नहीं है। सुनो तो सही यार, जल्दबाजी नहीं करो। मैं इसकी नहीं, जल्दबाजी की जरूरत भी नहीं है, आपके मुताबिक करनी है। देखिए इल्मी लेवल चेक कर रहा हूँ कि वो कितने, ताकि मैं उसके मुताबिक आपको जवाब दूं। देखिए मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, पहले आप अपनी बात का जवाब दें तो मैं दूंगा जरूर, सारा मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ, मेरी क्या मसरूफियात है और कितनी मेरी। आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं सिर्फ इल्मी लेवल चेक कर रहा हूँ कि मैं आपको कौन सी किताब से हवाला दूं। अच्छा चलो मैं नहीं पूछता, अब सुनो। आपने कहा कि मुतशद्दिद किस्म के बरेलवी जो वो ताहिरुल कादरी वाले होते हैं, सही है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आपने नहमीर या इरशाद सरफ पढ़ी होगी तो उनमें कोई भी लफ्ज जब होता है तो उसकी एक होती है तारीफ और एक होती है मिसाल। पहले तारीफ होती है। मैंने तारीफ नहीं पूछी मुफ्ती साहब, मैंने पूछा है कि डॉक्टर खालिद साहब ने तावील का दरवाजा बंद किया है। डॉक्टर खालिद साहब कहते हैं कि जिन्होंने मिर्जा कादियानियों को अहमदी कहा है उन पर तौबा भी फर्ज है, तो आप अपने बुजुर्गों की तौबा और रजू साबित करें। मेरा सवाल ये है। बात को सुनो, मैं तुम्हारी बातें सुनो, मैं तुम्हारी तकरीर सुनने के लिए बैठा, मेरी पूरी बात सुनो। अगर तुमने मुझसे सवाल पूछा है तो मेरा जवाब सुनो, फजूलियात नहीं इधर उधर टाइम मेरे पास नहीं, फजूलियात नहीं है मोहतरम, मेरा वो सवाल भी नहीं है जवाब दे रहे। तो मेरी पूरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। तुम समझने के लिए फोन कर रहे हो या खामखा इधर उधर की फजूलियात के लिए फोन कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए फारिग बैठा हुआ हूँ कि तुम्हारी फजूलियात सुनता रहूँ। मेरा जवाब क्यों नहीं सुन रहे हो? अगर आप इनको फजूलियात कहते हैं तो मोहतरम ये आपकी मर्जी है, मैं तो इसको फजूलियात नहीं कहता। मैं जवाब दे रहा हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ। सुनने तो जवाब देना क्या फजूलियात होता है? मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम फजूलियात कर रहे हो। मेरी बात को सुनो। अगर इसलिए फोन किया है कि कोई बात मालूम करनी है, मोहतरम चक करने के लिए फोन किया तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मोहतरम डॉक्टर खालिद साहब की मैं बात कर रहा हूँ, आप उसको फजूलियात कह रहे हैं। मोहतरम की बात छोड़ो, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सुन रहे हो? जी, डॉक्टर खालिद साहब की बात का जवाब रखते हो तो मेरी बात का जवाब सुनो। मैं तुम्हारा पाबंद नहीं हूँ कि मैं तुम्हें जवाब देने के लिए तुम्हारे लफ्ज दोहराऊंगा। जो लफ्ज उसके जवाब के बनते हैं वो सुनने की अगर सलाहियत तुम्हारे अंदर है तो सुनो, सलाहियत नहीं है तो फिर फजूलियात का टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं तुम्हारी बैठ की बातें सुनने के लिए। मेरा सवाल डॉक्टर खालिद साहब है, आप फर्ज की बात कहते हैं कि इसकी तारीफ है, इसका तारीफ है। डॉक्टर खालिद साहब की बात आप खुद फजूलियात कह रहे हैं। तारीफ बताओ मुझे, सुनो बरेलवी की तारीफ बताओ क्या होता है, मैं आगे जवाब देता हूँ तुम्हें। अल्लाह, तुमने मिसालें देने शुरू कर दी। ताहिरुल कादरी वाले होते हैं वो तो मिसाल है, तारीफ पहले होती है, मिसाल बाद में होती है। पहले मुझे बताओ तो मिसाल को छोड़े मुफ्ती साहब, मैंने कह दिया कि मुतशद्दिद के साथ बरेलवी नहीं हूँ, मतलब मुराद क्या है? मुराद मेरी यही है कि ताहिरुल कादरी वाली पार्टी जितनी भी है हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो मैं बरेलवी नहीं हूँ। और जितने अकायद फतावा के अंदर मौजूद है, इससे बड़ी बात क्या होती है? मैं तुमसे ये नहीं पूछा कौन सी पार्टी क्या है, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि मुतशद्दिद बरेलवी किसको बोलते हैं? बस तारीफ करो मेरे आगे। जैसे अल कलिमत लफ्ज़ुल मुज़िया लिमाना मुफरदन, वो तो मुझे पता चल गया कि मुफ्ती साहब आप जो है डॉक्टर खालिद साहब की बात की तरफ बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि उसका जो कुफ्र का फतवा है बहुत सारे बुजुर्गों के गलों के अंदर फिट हो गया। अंदर सुनो, तुम मेरा अगर जवाब सुनना चाह रहे होते ना कि तुम्हें सही तरीके से जवाब मिलता और तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाता तो तुम इस तरह की बातें कभी नहीं करते कि मैं जवाब नहीं देना चाह रहा हूँ। पता ये चल रहा है कि तुमने जवाब नहीं सुनना चाह रहे हो, तुम फजूलियात में नहीं डॉक्टर खालिद साहब की बात को आप फजूलियात कह रहे हैं। जवाब सुनने की तुम्हारे अंदर, मैं तुम्हें ऐसा जवाब मैं नाकिल हूं, मैं मुफ्ती खालिद डॉक्टर खालिद साहब की बात कर रहा हूं और आप डॉक्टर खालिद साहब की